Assalamu alaikum students. It's me Ms. Zareen from Sakyan Education Services, class 9, subject biology. Today we will start chapter 7, bioenergetics. Chapter 7, bioenergetics. Bio means life and energetics means study of energy. In this unit, you will learn about introduction and role of ATP. ATP stands for adenosine triphosphate. Photosynthesis and equation of photosynthesis. Role of chlorophyll and light. Limiting factors in photosynthesis. Respiration. Types of respiration. Aerobic respiration, anaerobic respiration, and mechanism of respiration. Introduction. Every machine requires energy, capacity to do work for performing its function. Like automobiles which require fuel to produce energy, cell phones have batteries which restore energy and utilize it for their working. Similarly, living organisms are also like machines. They need energy to perform their functions, to perform their duties, which require nutrients in the form of food. Living organisms need energy in the form of food. The special molecules of food contain energy. But the question is, where does this energy comes? ये एनर्जी इन्हें कहाँ से हासिल हो रही है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए होती है? द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ इज सन. ये एक ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी है ज़मीन के पास और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसकी कॉस्ट नहीं है. यहाँ से हम लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी दोनों टाइप्स ऑफ एनर्जीज हासिल करते हैं. अर्थ ऑफ द सन रीचेस energy of the sun reaches earth in the form of light energy. This light energy is further converted into heat energy, and heat energy is converted to kinetic energy, and kinetic energy is converted to mechanical energy and then electrical energy. So this is the cycle. This is the cycle in which energy is converted. There is a chart which shows how one form of energy is converted into another form. This chart is describe the energy conversion, and it is explained by the law of conservation of energy, or first law of thermodynamics, which states that energy is neither created nor destroyed during the process, but it can change one form into another form. Energy की जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट तो हो जाती है, मगर ना तो वो ख़त्म होती है और ना ही वो बनती है. ठीक है. अब देखें ये जो चार्ट है, यहाँ देखें सन से हमें एनर्जी मिल रही है. ठीक है. और वो कौन सी एनर्जी है? वो है हीट एनर्जी ऑफ लाइट. ठीक है. हीट एनर्जी है. देन इट विल कन्वर्ट इनटू रिवर वाटर. ठीक है, फ्लोइंग फॉर्म ऑफ वाटर, एंड द एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मूवमेंट फॉर्म, देन इट इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ देखें हीट एनर्जी जो कन्वर्ट हो रही है वो काइनेटिक एनर्जी में हो रही है. फिर काइनेटिक एनर्जी जो है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से पानी जो है मूव करते हुए डैम्स में जा रहे हैं. ठीक है. एंड इन द डैम इट कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी. वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे हैं. एंड द मैकेनिकल एनर्जी से वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है. तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में. इसी तरीके से सन से देखें प्लांट्स को एनर्जी हासिल हो रही है. ठीक है. और वो प्लांट्स क्या कर रहे हैं? वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है वहाँ पे. और जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है तो वहाँ पे भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है जो कि प्लांट्स के लिए है. और फिर वो प्लांट्स जब वो क्या कहते हैं, काऊ वगैरह की जो ग़िज़ा है वो प्लांट है जो कि वो ले रहे हैं. ठीक है. वो हर्बीवोर होते हैं. इसी तरीके से जब गाय ने या किसी भी ऐसे जो कि प्लांट्स नॉर्मली खाते हैं एनिमल्स, उन्होंने जब उस प्लांट को लिया तो उन्हें एनर्जी मिली. फिर जब उन छोटे एनिमल्स को बड़े वाइल्ड एनिमल्स ने खाया तो उनको एनर्जी मिली. तो ये फॉर्म ऑफ एनर्जी नज़र आ रही है आपको, एक लिंक है हर चीज़ में. ठीक है. इसी तरीके से प्लांट्स जब बरीड हो जाते हैं
themselves in the soil, जब वो मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं, when these parts of plants are eaten by animals, this energy is transferred into them, where the organisms buried and remain under pressure inside earth crust for millions of years. Their chemical energy is converted into fossil fuel. ठीक है, और वो fossil fuels भी जो है एक form of energy ही होते हैं. मतलब फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी नहीं होते, लेकिन ये क्या होते हैं, ये मिट्टी में मिल जाते हैं तो मिट्टी को क्या करते हैं, फर्टाइल करते हैं. तो ये जो है क्या है, ये एनर्जी का पूरा एक कनेक्शन है कि एनर्जीज जो होती हैं वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ईजिली कन्वर्ट हो जाती हैं, मगर ना तो उनके अमाउंट में कोई कमी होती है ना ज़्यादती होती है. अमाउंट उनका क्या होता है, वो सेम रहता है. नाउ कम टू बायो एनर्जेटिक एंड रोल ऑफ ATP. What is bioenergetic? As I said earlier, bio means life and energetic means study of energy. या हम ये भी कह सकते हैं कि conversion of energy. Bioenergetic is the study of conversion of free energy into different forms by living organisms is called bioenergetic. जैसे अभी मैंने पिछली स्लाइड में जो चार्ट एक था उसमें ये शो किया था कि एक फॉर्म से एनर्जी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, या हम ये कह सकते हैं कि एक स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ से एनर्जी कैसे गेट कर रहा है, तो वो जो है वो क्या कहलाता है, बायो एनर्जेटिक कहलाता है. ठीक है. It is a part of biology, physics, chemistry concerned with the energy involved in making and breaking of chemical bonds found in the molecule of organisms. जैसे chemistry की बात करें तो उसमें जो है bond formation और breaking of bond में भी energy यूज़ होती है. इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है कि एक स्पीशीज़ को दूसरी स्पीशीज़ से एनर्जी हासिल कैसे होती है, और दूसरी ये कि जिस तरह से नॉन लिविंग जो प्रोडक्ट्स हैं या जो चीज़ें हैं, थिंग्स हैं, उनको भी जो है कि कहते हैं एनर्जी चाहिए होती है, इसी तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको भी अपने सर्वाइव करने के लिए, अपनी लाइफ को प्रोसीड करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. और वो एनर्जी वो क्या करते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स से हासिल करते हैं. मेन सोर्स तो वो सन है, लेकिन सन जो है आगे जाके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट, जो सन की एनर्जी है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो गेट करते हैं. तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये जो है ये क्या कहलाती है, बायो एनर्जेटिक. बायो एनर्जेटिक कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसमिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. वही बात है कि एक स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ से कैसे एनर्जी को हासिल कर रहा है, उनके दरमियान क्या एनर्जी का रिलेशन है, वो चीज़ें जो हैं किस में आती हैं, बायो एनर्जेटिक्स में आती हैं. नाउ द केमिकल प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन और द केमिकल प्रोसेस विच इन्वॉल्व द एनर्जी ट्रांसमिशन. In living organisms, the energy is transferred through gain or loss of electrons during formation and breaking of chemical bonds. Because when the chemical reaction proceeds, the electron is only responsible for the chemical reaction. There are two types of chemical reactions known as oxidation and reduction reaction. The oxidation reaction are those reactions in which loss of electrons occur, and the reduction reactions are the reactions in which gain of electrons occur. जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो या तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे होते हैं. ठीक है, बॉन्ड्स बन रहे होते हैं, बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे होते हैं. फॉर्मेशन और ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स में यही होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होता है और कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होता है. तो देयर आर टू प्रोसेस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एंड इन कंबाइनली कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन. इसमें क्या है कि एक रिएक्शन ऑक्सीडेशन होता है, एक रिडक्शन होता है. ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. These electrons carry energy from the molecules from where they release or loss to the molecules where they're added. जब इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा होता है या इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता है तो वो क्या करता है, वो अपने साथ एनर्जी भी ले जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होता है वो उस एनर्जी को क्या करता है, होल्ड कर लेता है, स्टोर कर लेता है. लेट्स सपोज देयर इज एन एग्जांपल
आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म केमिकल कॉल्ड रस्ट। ठीक है, रस्टिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, आयरन के ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर आना स्टार्ट हो जाती है, दिस इज कॉल्ड रस्ट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। एंड इन दिस प्रोसेस आयरन लूजेज इट्स इलेक्ट्रॉन, आयरन अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है एंड गोइंग टू ऑक्सीडाइज, और क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। एंड ऑक्सीजन जो कि वहाँ पर मौजूद है, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन मौजूद है, वो ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, और इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ वो एनर्जी भी गेन करता है, और वो एनर्जी को क्या करता है, स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो आयरन क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है, और ऑक्सीजन क्या होता है, रिड्यूस्ड होता है। तो आयरन की तरफ से जो रिएक्शन होता है वो ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि आयरन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, और ऑक्सीजन की तरफ जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, रिडक्शन होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होता है। ठीक है, तो एनर्जी जो है हम सिर्फ इस फॉर्म में नहीं देख सकते कि जो हम ये कहें कि नॉर्मली जैसे हमारे पास जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी जैसे हमें नज़र आ रही होती है, सन से हीट एनर्जी आई, और हीट एनर्जी ने जो है कि कहते हैं उसे काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी ने मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, या हम रिमोट जो यूज़ करते हैं, रिमोट के जो सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर क्या होता है, केमिकल एनर्जी होती है। ठीक है, और वो क्या हो जाती है, वो कन्वर्ट हो जाती है दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में, जो कि वो रिमोट जो है चलना शुरू हो जाता है। सम टाइम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही होती है। तो ये तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, एनर्जी ट्रांसमिशन है, लेकिन देखें इलेक्ट्रॉन्स भी क्या कर रहे होते हैं, एनर्जी को ट्रांसमिट या एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। There is a diagram which shows the oxidation and reduction process. In living organisms, these oxidation reduction process and commonly called redox reactions occur simultaneously. ये दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं, एक स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है, दूसरी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन करती है। ठीक है, अगर ये दोनों रिएक्शंस एक साथ नहीं होंगे तो ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, और अगर ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा तो एनर्जी का ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब यहाँ देखिए कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो रिड्यूस्ड करता है, उसका काम क्या होता है, वो रिड्यूस्ड करता है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट है, एजेंट का मतलब क्या होता है, करने वाला। ठीक है, तो जो आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो इटसेल्फ ऑक्सीडाइज होता है, लेकिन दूसरों को क्या करता है, रिड्यूस करता है। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो इटसेल्फ रिड्यूस्ड होता है, लेकिन दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कि ये ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, तो अगर दो स्पीशीज़ आपस में मिल रही हैं, जैसे यहाँ पर देखें कंपाउंड ए एंड कंपाउंड बी, अब कंपाउंड बी क्या है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा ए को। ठीक है, इसी तरीके से कंपाउंड ए देखिए वो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो रिड्यूस्ड कर देगा किसको, कंपाउंड बी को। सही है। अच्छा, अब ए में क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, और जो रिड्यूस्ड हो रहा है वो क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है बट इटसेल्फ रिड्यूस्ड, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो दूसरों को रिड्यूस करता है, दूसरों को रिड्यूस करता है बट इटसेल्फ ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, और ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और जब ये दोनों प्रोसेस कंटिन्यूसली चल रहे होते हैं तो एनर्जी जो है वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र हो जाती है। बिना इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र हुए एनर्जी भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। Now the next topic is energy currency in living organisms. एनर्जी करेंसी का मतलब, जैसे हम करेंसी को खर्च करते हैं ना, ऐसे ही एनर्जी को खर्च करने वाला कौन सा मॉलिक्यूल है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनर्जी कैसे खर्च होती है। खर्च करने के लिए पहले स्टोर होना भी तो ज़रूरी है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि एनर्जी को स्टोर करता है। In our homes we store energy in batteries when electricity is available from usual source, or when light energy is available
We capture it by solar panels. This energy of batteries is utilized when the time of power shutdown or load shedding. Similarly, living organisms also have similar type of system to store energy, and this energy is stored in a special molecule called adenosine triphosphate, in short ATP. ATP is the molecule in living organisms which store energy and consumed when we need energy. ठीक है, एडिनोसाइन वो मॉलिक्यूल है जो कि एनर्जी को स्टोर करता है और जब ज़रूरत होती है तो वो खर्च करता है. ठीक है, इसीलिए इस टॉपिक का जो टाइटल है वो है एनर्जी करेंसी लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, अब वो एनर्जी स्टोर कहाँ से करता है एडिनोसाइन? वो डिफरेंट फॉर्म्स हैं. जैसे हम अगर बात करें तो फूड एनर्जी, हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है. ऐसे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं या और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है. फूड इज़ अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. तो जब हम इंटेक करते हैं, अगर हम ह्यूमन्स की बात करें तो हम जब खाना खाते हैं तो क्या होता है, वो खाना हमारे ब्लड में शामिल हो जाता है और फिर वो सारा प्रोसेस जो डाइजेशन का होने के बाद क्या होता है, कुछ फॉर्म उसकी क्या होती है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और वो एनर्जी क्या होती है, स्टोर हो जाती है. और जब हमें उस एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो एनर्जी जो है कि कहते हैं हम यूटिलाइज करते हैं. और वो एनर्जी जिस मॉलिक्यूल में स्टोर होती है उसे क्या कहते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. In living organisms, energy is liberated during oxidation reaction, and this energy is utilized by molecules called adenodiphosphate ADP to form a bond with phosphate. As a result, the ADP become ATP. Energy of oxidation is now stored in ATP. क्या है कि if a cell needs to spend energy to accomplish a task, अगर उस सेल को, किसी भी सेल को कुछ काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, the ATP molecules split off one of its 3 phosphates. जो 3 फॉस्फेट्स हैं उसमें से एक फॉस्फेट जो है वो अलग हो जाता है, वो बॉन्ड वहाँ से समझो ब्रेक हो जाता है उसका, और जो है एनर्जी रिलीज होती है. क्या होती है, एनर्जी लिबरेट होती है. ठीक है, जैसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था ना, तो यहाँ पर फॉस्फेट जो है वो निकल रहा है, तो यहाँ से एनर्जी लिबरेट हो रही है. और वो एनर्जी जो लिबरेट हो रही है, जो एनर्जी निकल रही है, वो सेल क्या करता है या लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, यूटिलाइज करता है. ठीक है, तो क्या है कि जब भी किसी सेल को एनर्जी चाहिए होती है तो जो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है उनमें से जो फॉस्फेट्स हैं, 3 फॉस्फेट्स हैं, उसमें से एक फॉस्फेट स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है. ठीक है, और एनर्जी लिबरेट होती है. जो एनर्जी लिबरेट हो रही होती है वो कहाँ यूज़ हो रही होती है, जो भी फंक्शन हमें परफॉर्म करना होता है वहाँ यूज़ होती है. ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, जो वो फॉस्फेट होता है वो अगेन एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट के साथ कंबाइन होकर एटीपी बन जाता है और वो एनर्जी को क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है. ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. The amount of energy stored in ATP molecule is 7.3 kilocalories per mole, and this energy will be utilized when the need to performing any type of work, for example transport of molecules or any sort of work. And this energy is now become free by breaking down of ATP molecule. As I said earlier, ATP molecule break into ADP plus phosphate. ठीक है, adenosine triphosphate is break down into adenosine diphosphate और एक फॉस्फेट अलग हो जाता है और एनर्जी रिलीज करता है. ठीक है, सो द फॉर्मेशन ऑफ ATP यानी अच्छा उसके बाद एनर्जी रिलीज करता है वो कितनी, 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल. ठीक है, जब दोबारा ATP मॉलिक्यूल बनना होता है तो वो जो फॉस्फेट यहाँ से अलग हुआ था वो दोबारा से ADP में आके अटैच हो जाता है, बॉन्डिंग कर लेता है और ADP कन्वर्टेड टू ATP एंड एनर्जी स्टोर. सही है, सो द फॉर्मेशन ऑफ ATP इज एंडरजॉनिक प्रोसेस. ठीक है, एंडरजॉनिक का मतलब
एनर्जी इनटेक, यानी कि जब एटीपी बन रही होती है तो एनर्जी चाहिए होती है, और जब एटीपी टूट रहा होता है तो एनर्जी रिलीज हो रही होती है. सो इज द एक्सर्जोनिक प्रोसेस. ठीक है, मीन्स के एनर्जी इसमें से क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है. एक्सो मीन्स या एक्सी मीन्स आउट एंड एंडो मीन्स इन. So endergonic process energy intake and exergonic process energy liberating. ठीक है, तो क्लियर हो गया कि जो एटीपी की फॉर्मेशन है तो उसमें फॉस्फेट आके ऐड हो रहा होता है, एनर्जी उसके अंदर क्या हो रही होती है, चाहिए होती है, इनटेक होती है, एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाती है. और जब एटीपी ब्रेक डाउन हो रहा होता है तो उसमें से फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो एक है वो बाहर जा रहा होता है, और एनर्जी भी क्या हो रही होती है, लिबरेट हो रही होती है. और वो एनर्जी कहाँ यूज़ हो रही होती है, फॉर परफॉर्मिंग एनी सॉर्ट ऑफ वर्क. So students, it's all about today's lecture. Wait for our next lecture. Until then, Allah Hafiz. Thank you.